take the book of Flamingo. Let us learn the lesson 3, Deep Water. Lesson number 3, Deep Water, written by William Douglas. Book of Flamingo, Lesson 3, Deep Water. Okay. It's an essay written by himself, William Douglas. He talks about his fear of water and thereafter how he finally overcame it. You can also say it is an autobiographical part from his side. The lesson starts like this. It had happened when I was 10 or 11 years old. It is an incident when he was a boy of 10 or 11 years old. I had decided to learn to swim. No need to say Hindi, it's a simple language portion. I had decided to learn to swim. There was a pool at the YMCA in Yakima that offered exactly the opportunity. YMCA is an organization, Young Men's Christian Association. Young Men's Christian Association in Yakima. Yakima is a place in Washington State, America, that offered exactly the opportunity. The Yakima River was treacherous. In that place, one river is also in the same name, that is Yakima River. It was treacherous. Treacherous means dangerous. Mother continually warned against it, and kept fresh in my mind the details of each drowning in the river. Mother told him not to go to Yakima River because it is treacherous and many incidents happened there and many people drowned there while learning to swim. So mother told him not to go there. But the YMCA pool was safe. There is a pool. It is controlled by YMCA and the pool was safe to learn swimming. And it was only 2 or 3 feet deep at the shallow end, and while it was 9 feet deep in the other end. The drop was gradual. स्टार्टिंग में उतरने का जगह में गहराई कम में, लेकिन आगे 9 फीट से ज़्यादा गहराई है, इसलिए एकदम कोई डूबते नहीं है या गिरते नहीं है. I got a pair of water wings and went to the pool. मैं वाटर विंग्स के मदद से सीखने के लिए उतर गए. वाटर विंग्स ये पर्टिकुलर थिंग
that we keep in the body to float in the water. पंख जैसा जो चीज़ें तैरने के लिए पानी में मदद करते हैं और इसके अलावा डूबने से बचाते भी है. I hated to walk naked into and show my skinny legs. मुझे पानी में उतरने में शर्म आते थे. मेरे टांग देख के मुझे वैसे शर्म आते क्योंकि बिकॉज आई वॉज सो थिन. बट आई सबड्यूड माई प्राइड एंड डिड इट. लेकिन मैं उस शर्म को दबा के पानी में उतरने का डिसाइड किया. फ्रॉम द बिगिनिंग, however, I had an aversion to the water when I was in it. From the beginning, however, I had an aversion. Aversion means hatred of what? To the water when I was in it. पानी में उतरना मेरे लिए नफरत की बात थी. फिर भी उतरने क्यों गया ये सवाल कर सकता है. दैट इज़ नॉट ए पॉइंट. होता तो है. And this started when I was 3 or 4 years old and father took me to the beach in California. वो aversion इसलिए क्योंकि जब when I was 4 or 3 years old, my father took me to the beach of California. कैलिफोर्निया में एक बीच में ले गए मुझे. And he and I stood together in the surf. हम दोनों समुद्र में पानी के ऊपर समुद्री तट में थे. I hung on to him, but the waves knocked me down and swept me over. मैं पापा के शरीर में लटक रहे थे, लेकिन एक लहर आ गया, हमें घेर लिया, मुझे उठा के ले गई. तो सोच के देखो वो लहर कितना बड़ा होगा. क्योंकि मैं पापा के शरीर में लटक रहा था, एक लहर आ गया और लपेट लिया और मुझे छीन के ले गया पापा के हाथ से. आई वॉज buried in water. मैं पानी में डूबने लगा. माई ब्रेथ वॉज गॉन. श्वास ही रुक गए. आई वॉज फ्राइटेंड. फादर लाफ्ड. मुझे तो डर लगा. पापा हंस रहा था. ऐसा भी पापा लोग हैं, बेटा डूब रहे और पापा हंस रहे. लेकिन वो हंस क्यों रहे थे उसके बारे में सोच के देखो. But there was terror in my heart at the overpowering force of the waves. Overpower means overwhelming. पराजित करने वाला जो लहर was a terrorized one for me. But father was laughing. क्यों? He was an experienced man in the sea. And he knew that nothing will happen to his son. He wished to make his son strong. That is why he was laughing. Besides, he was confident enough that he can save the boy if something will happen there. So that was the situation. इसलिए वो खड़े खड़े सोच रहे थे. आप लोग ये नहीं सोचना पापा तो ऐसे ही है, तो बस ढीला डाला है, बावड़ा है. डोंट थिंक लाइक दैट. एंड ही वॉज मेकिंग हिज सन कॉन्फिडेंट इनफ टू फेस द सिचुएशन. दैट इज वाई टू हैपन लाइक दैट. ओके, दैट वॉज द अवर्शन. अब पानी में उतरने का अवर्शन क्या था? Because his personal experience brought the point that
he was 3 or 4 years old, and he took the boy to the Californian beach, and there happened this incident. And he was going to be drowned of that incident. That is why there was a terror in his life and was an aversion to the water. Got the point? Okay, continue. My introduction to the YMCA swimming pool revived unpleasant memories and stirred childish fears. लेकिन अब मैं बड़ा होकर ऑटोबायोग्राफी तैयार करता है तो मैं उसके बारे में सोचता हूँ. YMCA पूल में तैरने सीखने की कुछ बातों का मज़ा भी आता है, डर भी आता. बट इन ए लिटिल वाइल आई गैदर्ड कॉन्फिडेंस. लेकिन लिखने से पहले मैं थोड़ा हिम्मत रखा. उसके बाद आई पैडल्ड विथ माई न्यू वाटर विंग्स. पैडल मीन्स डैबल्ड. तैरते समय हाथ पैर हिलाते हैं, उसे कहते हैं पैडल. But in the little while I gathered confidence, I paddled with my new water wings, watching the other boys and trying to learn by aping them. Aping means नकल उतारना. बाकी बच्चे जैसे करते हैं वैसे मैं मेरा वाटर विंग्स की मदद से मैं पैडलिंग करने लगा. नॉट पेडलिंग बट पैडलिंग. I did this 2 or 3 times on different days and was just beginning to feel at ease in the water when the misadventure happened. इस तरह से मैं 2 or 3 times on different day, कई दिन इसे प्रैक्टिस किया डेली 2-3 बार, तो मुझे थोड़ा बहुत तैरने आया. लेकिन ऐसा एक दिन प्रैक्टिस करते समय ये घटना घटी है उसके जीवन में. मिस एडवेंचर मीन्स दुर्घटना. अब तो आइडिया मिल गया होगा. अब नो मोर एक्सप्लेनेशन, सिंपल लैंग्वेज. ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपनिंग एंड कंटिन्यू. आई वेंट टू द पूल व्हेन नो वन एल्स वाज देयर. कोई भी नहीं था पूल में उस दिन. मैं पानी में उतर गया. द प्लेस वॉज क्वाइट. सी द वर्ड क्वाइट, स्पेलिंग QUIET. You may have forgotten that I have told you that there are only 2 quiets in English language. One is QUIET and the other one is QUITE. Here it is QUIET means shant. QUITE, quiet, is very. The place was quiet means जगह बिल्कुल शांत. The water was still and the tiled bottom was as white and clean as a bathtub. YMCA पूल का नीचे भाग पूरा टाइल्स लगा हुआ था. And it can be seen from outside. That means the water was clear. I was timid about going in alone. अकेले जाने में थोड़ा तकलीफ हो रही थी. So I sat on the side of the pool to wait for others. इसलिए मैंने सोचा कोई आने तक इंतज़ार कर लें. I had not been there long when in came a bruiser of a boy, probably 18 years old. He had thick hairs on his chest. He was a beautiful physical specimen with legs and arms that showed rippling muscles. इतना में एक अट्टा कट्टा लड़का उधर आए. And he had thick hair on his chest and he was
about 18 years old, I think. And he had rippling muscles. Rippling means वेवी, जो जिसका बॉडी अच्छा है उसका जो मसल्स वगैरह तगड़ा है तो वो आराम से हिला सकता है। वो इस तरह से मसल हिलाते हिलाते दिखाई दिया। ही येल्ड, है स्किन्नी, हाउ डू लाइक टू बी डक्ड, ए पतलू, हाउ डू लाइक टू बी डक्ड। डक्ड मीन संग, तुम डूब गया तो क्या करोगे। With that he picked me up and tossed me into the deep end. मैंने सोचा कुछ मजाक कर रहा होगा, लेकिन ये कह के वो मुझे उठा लिया और पानी में पटक दी। I standed in a sitting position. Standed means गिर गया, fell. I was frightened, but not yet frightened out of my wits. डर तो लगा नहीं, लेकिन डर लग गया। मैंने सोचा, ऑन द वे डाउन आई प्लान्ड, व्हेन माई फीट हिट द बॉटम आई वुड मेक ए बिग जंप, come to the surface, lie flat on it and paddle to the edge of the pool. ज़्यादा डर इसलिए नहीं लगा क्योंकि मैं नीचे का पोर्शन दे सकता हूँ। उसको पता है मैं नीचे जाऊँ, जैसे मैं पैर में मेरा ताकत लेके नीचे से जंप लगा सकता है। कीचड़ है तो ऐसा तो नहीं कर सकता है, लेकिन यहाँ तो टाइल्स लगा हुआ, पहले ही बताया। इसलिए मैंने सोचा तो कोई सा भी बात आ जाए तो मैं आराम से ऊपर आ सकता है। दैट इज़ वाई ही वॉज नॉट फ्राइटेंड। तब तक डर नहीं है जब तक ये चिंता उसका मन में नहीं आया। नेक्स्ट पैराग्राफ। इट सीम्ड ए लॉन्ग वे डाउन, लेकिन जैसा मैंने सोचा इतना जल्दी नीचे पहुंचा नहीं है। दोस 9 feet वेयर मोर लाइक 90 एंड बिफोर आई टच्ड बॉटम माई लंग्स वेयर रेडी टू बर्स्ट। पानी में डूबने की बात है, जितना हम सोचते हैं उतना टाइम हम पानी में डूब के नहीं बैठ सकता। उसने सोचा जल्दी नीचे जाएगा, जंप मारे, लेकिन ऐसा हुआ ही नहीं, उसका सफोकेशन होने लगा। बट वेन माई फीट हिट बॉटम आई समन्ड ऑल माई स्ट्रेंथ एंड मेड वाट आई थॉट वाज ए ग्रेट स्प्रिंग अपवर्ड। जैसे मैंने सोचा वैसे पहुंच तो गया नीचे। मैंने पैर में पूरा दम लगा के ऊपर की ओर उछला। आई इमेजिन्ड आई वुड बॉब टू द सरफेस लाइक ए कॉर्क। मुझे लगा था कि एक कॉर्क जैसा मैं एकदम ऊपर की ओर बॉब हो जाएगा। बॉब मीन्स जंप। जैसे मैं जंप लगा दूंगा एक कॉर्क का जैसा मैं एकदम ऊपर आएगा। कॉर्क मीन्स बोतल का जो कैप होता है, ढक्कन होता है, उसको पानी में प्रेस करके छोड़ा है तो एकदम ऊपर उछल के आएगा, उल्टा है तो डूब जाएगा। और इस तरह से मैं ऊपर आ जाऊं। आई ओपनड माई आइज एंड सा नथिंग बट वाटर। लेकिन मैं बीच में आंखें खोल के देखा, पानी के अलावा कुछ दिखाई दिया। वाटर दैट हैड अ डर्टी येलो टिंज टू इट। पानी का कलर भी पीला पीला दिखाई देने लगा। आई ग्रू पैनिकी। अब मुझे डर लगने लगा। आई रीच्ड अप as if to grab a rope and my hands clutched only at water. मुझे ऐसा लगा कोई रस्सी दिखाई दे रहे। मैंने उसको कस के पकड़ा, but it was not a rope, it was water. I tried to yell.
आई वॉज सफोकेटिंग, मेरा दम घुटने लगा. आई ट्राइड टू येल बट नो साउंड केम आउट. चिल्लाने का कोशिश किया लेकिन आवाज़ नहीं आई. देन माई आइज एंड नोज केम आउट ऑफ द वाटर बट नॉट माई माउथ. आइस और नोज ऊपर आया लेकिन मुंह ऊपर आया ही नहीं. Next paragraph. I flailed at the surface of the water, swallowed and choked. Flailed. जब पानी के अंदर डूब के घबराहट होता है तब बचने के लिए हाथ पैर चलाने का तरीका को क्या कहते हैं? फ्लेल्ड कहते हैं. और एक तरह का इंस्ट्रूमेंट को भी फ्लेल्ड कहते हैं. लेकिन यहाँ तो वही सिचुएशन, जैसे बड़े बड़े जो ड्रम में जो हाथ पैर मारते हैं जो मिलिट्री वाले, ऐसे हाथ पैर मारने लगा. लेकिन हुआ तो यही है, स्वालोड एंड चोक. लेकिन पानी मेरे अंदर गया और जिस वजह से और सफोकेशन होने लगा. आई ट्राइड टू ब्रिंग माई लेग अप बट दे हंग आस डेड वेट, पैरालाइज्ड एंड रिजिड. मैं मेरे पैर ऊपर खींचने का कोशिश किया लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ. वो ऊपर आया ही नहीं. ऐसा लगा कि बस वो लकवा पड़ गया मेरे पैर में. I had started on the long journey back to the bottom. A great force was pulling me under. जब मैं पैर ऊपर खींचने का कोशिश किया तो मुझे ऐसा लगा कोई चीज़ मुझे नीचे की ओर खींच रहे. I screamed but only the water heard me. मैं तो चिल्लाया लेकिन कोई आवाज़ नहीं आई. I had started on the long journey back to the bottom of the pool. जो मैंने सोचा था मैं ऊपर आते समय तैर के किनारे पहुंच जाऊं, लेकिन ऊपर आने के बाद ऑटोमेटिकली मैं नीचे जाने लगा. आई स्ट्रक एट द वाटर as I went down. जैसे मैं नीचे नीचे जाने लगा, आई स्ट्रक एट मीन्स हिट, जोर लगाया. आई वेंट डाउन expending my strength as on in the nightmare fight against the irresistible force. Irresistible. Overpowering. कभी कभी डरावना सपना आता है तो हमें कोई खींचता है, हम उससे से बचने का कोशिश करते हैं. दैट सिचुएशन इज हियर. Some powerful force was drawing me down. I had lost all my breath. My lungs ached. My head throbbed. पल्स ज़्यादा हो गया. I was getting dizzy. मुझे चक्कर आने लगे. But I remembered the strange strategy. तब मुझे वही प्लान याद आ गया मेरा. स्ट्रैटेजी मीन प्लान. व्हाट वाज द प्लान? when I will reach at the bottom of the pool, I will make a jump. I would spring from the bottom of the pool and come like a cork to the surface. पहले ही बोल दिए, एक कॉर्क जैसा मैं ऊपर तक जल्दी पहुंच जाऊँ. I would lie flat on the water, strike with my arms and thrash with my legs. Then I would get to the edge of the pool and be safe. और पहले का जैसा यही सोचने लगा. ऊपर आते ही मैं फ्लैट पड़े रहूँगा, आगे की ओर बढ़ूँगा और किनारे पहुँच जाऊँ. लेकिन मेरा सोच गलत था. आई वेंट डाउन एंडलेसली. मैं नीचे की ओर जाता रहा. आई ओपनड माई आइज. नथिंग बट वाटर विथ येलो ग्लो. डार्क वाटर दैट वन वुड नॉट सी थ्रू. लेकिन
करेंगे। मैं नीचे की ओर गया, नीचे की ओर गया, हाथ पैर मारा, पानी आंख खोल के देखा, लेकिन क्लियर दिखाई नहीं दे रहे, पहले का वो येलो टिंच दिखाई दिया। एंड देन sheer stark terror seized me, तब मुझे डर लगने लगा। बिल्कुल सादा, प्योर, शार्क मीन्स प्योर टेरर सीज्ड मी, असली डर अभी हुआ मेरे को। टेरर दैट नो अंडरस्टैंडिंग, वो डर उसका समझ ही नहीं है। टेरर दैट नोस नो कंट्रोल, ऐसा डर उसका कोई कंट्रोल नहीं है। टेरर दैट नो वन कैन अंडरस्टैंड, ये मैं बताऊं तो किसी को समझ में नहीं आएगा। एंड हु हैज़ नॉट एक्सपीरियंस इट, जो इसका अनुभव नहीं किया। वो अनुभव करना है तो बाल्टी में पानी ले लो और सिर डुबो के रख दो। जो सफोकेशन होना शुरू करता है, दम घुटता है कैसे है तो पता पड़ेगा। लेकिन मेहरबानी करके कोई ऐसा मत करना, फिर बाद में ये बोलने सर ने बोला था, इसे प्रैक्टिकल करके देख ले। तो यही है दम घुटना। हमारे इधर कोई वाटर सोर्स नहीं है, नदी नहीं है, पॉन्ड नहीं है, तैरने आते नहीं हैं, तो हमारी बात बिल्कुल अलग है। इसलिए बोला तो दम घुटने का तरीका कैसा होता है पानी में, वो थोड़ा बहुत महसूस होगा। आई वॉज श्रीकिंग अंडर वाटर, मैं पानी का अंदर से चिल्ला रहे थे। आई वॉज पैरालाइज्ड अंडर वाटर, पहले भी बोला था। पहले पैर पैरालाइज होने का जैसा लगा, अभी तो पूरा शरीर ही पैरालाइज होने जैसा लगा। पैरालाइज होना मतलब जाम होना, लकवा पड़ना। स्टिफ रिजिड विथ फियर, डर के मारे मेरे पैर पूरा बॉडी हिला ही नहीं। इवन द स्क्रीम्स इन माई थ्रोट वेर फ्रोजन, चिल्लाने का कोशिश तो किया, अब की बार चिल्लाने का प्रयास करने से कोई फ़ायदा नहीं, तो ऐसा लगा पूरा फ्रीज हो गया, जाम हो गया। ओनली माई हर्ट एंड द पाउंडिंग इन माई हेड एंड सेड दैट आई वॉज स्टिल अलाइव, और बस इतना तो मुझे पता है, दिल का धड़कन और सिर का जो मूवमेंट मैं महसूस कर सकता था। फ्रॉम दैट आई अंडरस्टूड दैट आई वॉज अलोन, आई वॉज अलाइव। तो उससे मुझे पता पड़ गया कि मैं अभी जिंदा हूँ। नेक्स्ट पैराग्राफ। And then in the midst of the terror came a touch of reason. Touch of reason means समझ की बात। ऐसा डर के बीच में एक समझ की बात आई। I must remember to jump when I hit the bottom. अरे यार, मुझे तो जंपिंग करना नीचे पहुंचते ही। At last I felt the tiles under me. My toes reached out as if to a grab. Then I jumped with everything I had. टो, पैर का उंगली को कहते टो, कोई सा भी उंगली हो, हाथ का जैसा अंगूठा, वो ये रिंग फिंगर, स्मॉल फिंगर, लिटिल फिंगर, इंडेक्स फिंगर, ऐसा कुछ भी नहीं है। पैर का कोई सा भी उंगली हो उसको टो कहता है, टोस कहता है। तो मुझे लगा कि मेरे पैर तो नीचे टच हो गया, तो देन दैट आइडिया आई विल मेक ए जंप एंड बट द जंप मेड नो डिफरेंस। जंप तो किया लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। द वाटर वॉज स्टिल अराउंड मी। आई लुकड फॉर रोप्स, लैडर्स, वाटर विंग्स, नथिंग बट वाटर। मैंने सोचा मुझे ऐसे ऐसे चीज़ मिलना चाहिए, या तो रोप या फिर लैडर या वाटर विंग्स, कुछ भी नहीं मिला, पानी पानी नजर आए। ये मास ऑफ येलो वाटर हेल्ड मी, स्टार्क टेरर टुक एन इवन डीपर होल्ड ऑन मी। क्लियर डर अब बढ़ने लगा। लाइक ए ग्रेट चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जब किसी को करंट मारते समय क्या फीलिंग है, मुझे ऐसा लगने लगा। आई शुक एंड ट्रम्बल्ड विथ फियर, मैं कांपने लगा, धूजने लगा, डर से भी ठंड से भी। एंड माई आर्म्स वुड नॉट मूव, मेरे भुजाएं हिल ही नहीं रहे। भुजा का क्या काम है? हाथ मारने का, वो भी नहीं चल रहे अभी। माई लेग्स वुड नॉट मूव,
लेग्स भी मूव नहीं कर रहे। लेग्स का क्या काम है? तैरने वालों का हाथ और लेग बराबर चलते रहना है, वरना तो गया। आई ट्राइड टू कॉल फॉर हेल्प। अब मुझे पता पड़ गया मुझे किसी की मदद चाहिए। नॉर्मली हम लोगों को मदद चाहिए तो सबसे पहले मम्मी का नाम आता है, क्योंकि मम्मी का मदद आसानी से होता है, इसलिए मम्मी का नाम लेता है। मम्मी पास में नहीं है तो भी मम्मी चिल्ला लेते, नथिंग हैपन। नदी में न मम्मी को क्या पता है, ये तालाब में तैरने की हमारी आदत है ना, कई काम करने के लिए जाते समय किसी को बता के ही नहीं जाता, इसलिए मैं कुछ बता नहीं पाए। चिल्लाए मम्मी का नाम लेके, लेकिन मम्मी नहीं थी उधर, इसलिए उसका चीखने की आवाज़ कोई सुना नहीं। एंड देन स्ट्रेंजली देयर वॉज ए लाइट। आई वॉज कमिंग आउट ऑफ द awful येलो वाटर। फिर मुझे ऐसा लगा कुछ रोशनी दिखाई दे रहे, और बात यही थी, मुझे ऐसा लगा मैं बिल्कुल पानी के ऊपर आ गए। एटलीस्ट माई आईज वेयर, माई नोज वॉज ऑलमोस्ट आउट टू। वैसे मेरे आंखें बाहर आ गए, नाक भी बाहर आ गया। देन आई स्टार्टेड डाउन ए थर्ड टाइम। अभी भी मैंने सोचा बचने का मौका है, लेकिन कुछ हुआ नहीं। मैं नीचे की तरफ जाने लगा वापस। आई स्टक्ड फॉर एयर एंड गोट वाटर। मैं श्वास लेने का कोशिश की, लेकिन नाक में पानी घुस गए। द येलोइश लाइट वॉज गोइंग आउट। जो पहले पानी में जो पीला कलर दिखाई दिया वो भी गायब हो गया। पता नहीं क्या है, बेहोशी की अवस्था में चले गया। सो टुडे we will learn, we have learned up to this part, and the next we will see later.